बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं प्रीति। इस बहुत ही विशेष संस्करण में अभी हमने सुना प्रधानमंत्री का ये विशेष संबोधन। तो 3 मई तक और बढ़ेगा ये लॉकडाउन। 3 मई तक हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा और 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में सीमित छूट का प्रावधान होगा, लेकिन ये सशस्त्र होंगी ये। और 20 अप्रैल तक हर कस्बे, थाने, जिले और राज्य को परखा जाएगा, लेकिन जो छूट दी जाएगी वो होगी सशस्त्र, यानी कि पूरी एक इसमें साथ कड़े नियमों के साथ पालन के साथ ही आपको अनुमति दी जाएगी। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यहां पर प्रधानमंत्री के संबोधन में निकल कर आई है कि 3 मई तक हर देशवासी को लॉकडाउन में रहना होगा। आज जो लॉकडाउन का 21 दिन के लॉकडाउन का अंतिम दिन था और आज इसीलिए प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है पूरे राष्ट्र को और ये बात साफ कर दी है कि अभी हमारा आधा सफर तय हुआ है। कोरोना के खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी जारी है और इसीलिए हमें अपने अनुशासन को बनाए रखना है और 3 मई तक इस लॉकडाउन का पालन करना है। Yes, the Prime Minister closed on the positive thought of हम सभी राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाए रखेंगे. This was the gist of the Prime Minister's address to the nation today at 10 a.m. when he wished the best of for his countrymen. He talked of how the lockdown has to be followed till 3rd of May. So more or less around 45 days of lockdown will be witnessed by the country. In all, today is the last day of the 21-day lockdown which was announced, and in addition to that, the Prime Minister has said that the lockdown will continue till 3rd of May. Important pointers in his speech. He talked of the holistic and integrated approach while addressing the crisis which has been adopted by the country. He talked of how important social distancing and lockdown have been all through these 21 days, and he reminded that strict compliance of the lockdown has to continue till 3rd of May as well. He also talked of how through the next week, that is till 20th of April, every district, every state will be under strict monitoring to gauge how they have fared in the fight against COVID-19, and those particular areas which will not be earmarked as hotspots, there the essential activities will be allowed. And also he said that in such areas, or for that matter all through the country, strict rules have to be followed and no carelessness will be entertained and tolerated. He also talked of how these important essential activities will be allowed, keeping in mind the welfare and the concerns of the poor and downtrodden sections of the society. He also said that the Prime Minister, the government in fact, will help these sections of the society through Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. And he specifically talked of how the centre and the states, they have to work together for the welfare of the farmers, and the concerns of the farmers have to be addressed. And the Prime Minister put forth 7 important points which countrymen, you and I, have to follow through the rest of the lockdown till 3rd of May. We'll talk about all this and more with 2 guests in the studio. We are joined in by 2 guests by Mr. Subhamoy Bhattacharjee. He is economic journalist, and we are also joined in by Mr. Shekhar Iyer. He is senior journalist. Both of them will talk more about the Prime Minister's address, which we saw him give to the nation just a while back. बिल्कुल, सबसे पहले शेखर जी आपसे ये बात करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री तमाम पक्षकारों से बातचीत कर रहे थे, जो विभिन्न राज्यों से, सरकारों से बातचीत हो रही थी। लगातार हमें संकेत भी मिल रहे थे कि इस वक्त जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाने के संकेत हमें मिल रहे थे। जो तमाम राज्य थे उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था। तो आज उम्मीद की जा रही थी कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री। कई राज्यों ने तो इस वक्त जो लॉकडाउन है 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, लेकिन पूरे देश के बारे में प्रधानमंत्री ने फैसला करना था और जो प्रधानमंत्री ने आज जिसकी अनाउंसमेंट की है, जिसकी घोषणा की है, कई महत्वपूर्ण बिंदु ये रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी मरीज की मौत दुखद है और इससे हमारी चिंता बढ़नी चाहिए और इसीलिए हॉटस्पॉट को देखकर सतर्कता और भी ज्यादा बढ़नी है और अगले 1 सप्ताह में कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें और ज्यादा कठोरता आएगी। सबसे पहले शेखर जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लगातार बात की जा रही थी कि लॉकडाउन बेहद जरूरी है और उसको बढ़ाना ही पड़ेगा, जो कि अगर हमें कोरोना की महामारी के खिलाफ अगर हमारी जो जंग है उसे और ज्यादा तेज करना है। सबसे पहले किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को? देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण में आज 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि हमने कैसे पहले केस आने से पहले क्या क्या कदम हमने लिए, उसका परिणाम क्या है, और जिस तरह ये डिजीज़ बाकी देशों में फैला है उतना हमारे यहाँ नहीं फैला है। इसका कारण ये है कि पहला केस होने से पहले ही हमने कई कदम लिए, उसका उन्होंने विवरण दिया। दूसरी बात, इस डिजीज़ का जो कैपेसिटी है
जिस तरह वो स्प्रेड कर सकता है, जिस तरह वो फैला है, उसके बारे में उन्हें पूरे विवरण दिया। तीसरा, उन्होंने ये बताया कि हमारी तरफ से क्या क्या पदक्षेप लिए हैं, क्या क्या स्टेप्स हमने लिए हैं, उसका क्या असर है, उसका क्या रिजल्ट है। साथ साथ उन्होंने ये भी बड़ा मैसेज दिया कि अभी भी समय नहीं आया है कि हम इसको रिलैक्स कर सकें। जिस तरह हम अभी स्टेप्स लिए पूरा भारतवर्ष में, जिस तरह लॉकडाउन को हमने माना है, किस तरह हमने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया है, ये चीज़ें जारी रहनी चाहिए आगे मई 3 तक। साथ साथ कई इलाके में जहाँ पे लगता है कि हॉटस्पॉट्स उतने नहीं हैं या हॉटस्पॉट्स बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे जो डेली वेज अर्नर्स है, जो अति गरीब जो हैं, जो हर दिन कमाई करके अपने पेट भरते, उनके लिए कुछ सुविधाएं दी जाएंगे। साथ साथ कई जगह भी 100% रिलैक्सेशन भी हो सकता है, लेकिन जो बाकी जो गाइडलाइंस वगैरह है, जो सातों बात उन्होंने जो की 7 स्टेप्स, वो वहाँ जारी रहेगा। और मुझे लगता है और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो बात की कि मई 3 तारीख तक जो जिस तरह निगरानी रखी जाएगी, जिस तरह विजिलेंस रखा जाएगा, और इसमें कोई भी वायलेशंस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और हमें भी मतलब एक नागरिक के रूप में भी हमें भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, हमको भी फॉलो करना है और ये भी देखना है कि और कोई भी वायलेट ना करे। मुझे लगता है कि इसमें इस प्रधानमंत्री के भाषण से एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि सरकार कॉन्फिडेंट है, जो स्टेप्स लेना है वो ले चुके हैं और भी ले रहे हैं। सारे राज्यों सरकार से भी बातचीत जारी है, डायलॉग जारी है। उस हिसाब से हर दिन जो जो चीज़ें करनी है वो हम कर रहे हैं। और दूसरी बात भी उन्होंने कहा, जो पदार्थों को लेकर, दवाई को लेकर, बाकी एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल गुड्स को लेकर, जहाँ भी कोई सप्लाई की दिक्कत हो रही है, क्योंकि बीच बीच में कई रिपोर्ट्स आते हैं कि कई बाज़ार में सामान नहीं मिल रहा है या कई कतारें ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वहाँ भी सप्लाई सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा रहा है, कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सामान पहुँच रहे हैं बाज़ार में, मार्केट में आ रहे हैं। इसीलिए किसी को कोई ये होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई घबराने की कोई बात नहीं है, केवल नियम को पालन करना है। हम इस लड़ाई को बिल्कुल जीतेंगे। All right, we'll take this thought forwards to our next guest who is with us, Mr. Subhamoy Bhattacharjee. Sir, when we talk of the address of the Prime Minister talked of how there is no shortage of essential items in the economy. Added to that, he also talked of how in the longer run, the fight against coronavirus will be expensive given the way the lockdown has to be extended. But this assurance coming in from the Prime Minister of the country that we are in control of the situation, how do you read this, and how much of this was needed when the entire nation, the entire world is grappling with the distressing times in the fight against the pandemic? Sure. I mean, what you realize is that this was a speech, and like the previous speeches, which is what is called mincing no word, meat. You essentially is making it very clear how deep is the problem, and that is not only necessary but also essential at this stage. Remember, India works at several levels. There are the educated, the what we call the urban elite. There's another level which is at the intermediate towns, and finally there is the rural India. All of the sections need to be made clear what are the essentials, what are the challenges. For us operating from here, it might seem obvious that some of these things are intuitive, that people have to go in for a lockdown for 30th April or till 3rd May. But for people who have never ever even understood it, the discussion level and lots of things are not yet, even now, doesn't always make it so obvious, which is why the Prime Minister had to sort of make it down, pare it down to very simple, straightforward points. And that, I think, is essentially what these speeches are all about. Right from the first day when he announced the Janata curfew, down to the next one on next Tuesday when he announced the 21-day lockdown, and finally now, where he's making it clear that there is a long, hard fight ahead. Remember, within this, he's talking about a very important thing. And that's why it's, as I said, it's a very hard speech, where he says that from today till 20th April, there is going to be a very fresh, clear scrutiny of every region, every police thana actually, down to that detail, where whether those are sort of maintaining their fight against corona or whether they are slipping up.
these are exercises which would mean that there will be far greater attention to what people do, more detailing, more amount of intrusion into, in fact sometimes people can feel into their almost like private space, but it will be done. And for that to carry conviction, and for people to accept it, I mean, there are so many areas that we are now seeing where coronavirus has spread, which are extremely difficult, congested areas, and these are becoming the new hotspots. And in those hotspots, if the government has to actually go in and to start, really pushing down at a very, very hard level of containment, then lots of decisions will be taken. In fact, he did say that tomorrow there will be the detailed announcements which will be coming up on, Guidelines, yes. guidelines will be coming up. So this means that there is, I mean, it wasn't something that he was just saying that, till 3rd May there's a lockdown. There's a lot more coming in now, and those lot more which will be fairly uncomfortable. He made it very clear. He had to sort of come out and make it palatable to people, and there are millions actually for whom it can be very uncomfortable to live with it, not just for one day, but for more than a fortnight, almost 18 days. तो कोरोना को किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों तक फैलने नहीं देना है और इसके लिए सख्त जो रणनीति है वो अपनाई जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना होगा और 3 मई तक देशवासियों को इस लॉकडाउन में रहना होगा। एक बार फिर सुन लेते हैं प्रधानमंत्री की बात। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, That would mean यानी 18 days. 3 मई तक हम सभी को, Yes, sir. हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। All right, Mr. Shekhar Iyer, when we talk of the call of the Prime Minister to extend the lockdown till 3rd of May, so more or less 40 days in total, the nation will be in the lockdown. Till now, how has been our fight against the virus? Because the Prime Minister talked of how losing a single life against the pandemic would be a very huge loss for the country. So, given the way the pandemic has spread in the entire world, where are we placed? Because on one hand is taking care of the economy and the country as a whole. On the other hand, the challenge is also to deal with stray incidents of carelessness. Added to that, people there hiding, still not coming to terms with of them having the symptoms of the virus, hiding travel histories, running away from isolation centers. So how tough is it to put together all this for the administration? It has been, I think, an Herculean task, I would say, because we haven't faced this kind of situation before. Earlier, yes. Neither has the world, because you are already seeing, look at the contrast. We are a country of 1 billion people, and here what are you seeing? You are seeing a situation where countries which have far better health infrastructure than us, countries which have far more resources than us, have succumbed to this disease. Look at the cases, number of cases in the United States, cases in UK, France, Italy, Spain. Now all these countries are facing an explosion of the disease, whereas we were right from the beginning very careful. Moment we heard of this problem, we started screening our visitors, followed by we immediately brought in lockdown at a time when nobody actually thought of that, and there were a lot of questions, why the lockdown, why are we going through this? But now look, if you see what has happened in the last 3 weeks,
it has been one of the best decisions that the government has taken, because we have contained it. We have contained it to few areas, and even if some cases that have happened, and if we are seeing some cases going up, that is largely because this social distancing was not properly followed by certain sections. That is the result has happened. Nevertheless, even those situations are coming under control. That's why you have these clusters, you have hotspots, you have containment zones. All these has been worked out. So therefore, the manner in which the people have responded to the call of the Prime Minister to enforce social distancing, and all of us, I would say, all of us have undergone several stress. There have been a lot of difficulties, and particularly the poor people have been silently bearing the burden of this lockdown. But everybody has followed the rule, and the result is today we are looking at a situation which looks manageable and containable, and there is no scare, because there is one sense that is coming across from the Prime Minister's speeches. Today the government is confident, and therefore the people are confident that we shall overcome this. But from our side, what we need to do is, let us impose a self-lockdown ourselves. Let us follow all those guidelines, particularly the 7 guidelines which the Prime Minister ended his speech. 7 things which starts from taking care of the elderly people, on to showing proper respect to the healthcare people, to our policemen, to all those who are out on duty, risking their lives for the sake of us. So I think this is a moment where we can proudly feel, look, India has responded to the situation in a very brilliant way. Indeed, and this is that we the people moment, which the Prime Minister also talked of in his address. The Prime Minister also laid emphasis on social distancing, and he also talked of how this was very crucial in the containment which our guest is talking about. Let's listen to the Prime Minister when he spoke on social distancing. सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का बहुत बड़ा लाभ देश को मिला है। अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये महंगा जरूर लगता है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनिया भर में होना बहुत स्वाभाविक है। देश की राज्य सरकारों ने भी, स्थानीय स्वराज संस्थाओं की इकाइयों ने भी इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया है। 24 घंटे हर किसी ने अपना जीमा संभालने के लिए प्रयास किया है और हालत को संभाला भी है। Prime Minister Modi, while addressing the nation, said that from 20th of April, the situation in every police station, every district, every state will be evaluated to see how effectively the lockdown is being implemented, and areas with no hotspots and are not likely to become hotspots will be given some relaxation from 20th of April for essential services. अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को बड़ी बारीकी से परखा जाएगा। वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, इसका मूल्यांकन लगातार किया जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और
जिनके हॉटस्पॉट्स में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन इस वक्त तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमारी जो आक्रामक रणनीति है कोरोना के खिलाफ, अगर हमें उसे जारी रखना है, और आज प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से ये बात साफ कर दी कि अभी 3 मई तक देशवासियों को इसी लॉकडाउन में रहना होगा। बिल्कुल जया, बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। आप पूरे संबोधन को एक दरअसल 3 भागों में देख सकते हैं। पहला, अभी तक जो कदम उठाए गए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत में एक केस भी नहीं था तभी एक एहतियाती उपाय शुरू कर दिए गए थे। हम जानते हैं कि एयरपोर्ट पर जो स्क्रीनिंग है वो शुरू कर दिए गए थे, और जो उपाय उठाए गए यही वजह है कि आज कई दुनिया के देशों के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में है, और दुनिया भर के देश जो भारत ने जो उपाय किए एक तरह से उस ओर देख रहे हैं, और एक तरह से हम जानते हैं कि उसकी सराहना भी कर रहे हैं। तो दूसरी जो अहम बात है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसका एक ऐलान किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1 हफ्ते और जो इस लॉकडाउन को और सख्ती से लागू करने के लिए थाना स्तर तक यानी एक समीक्षा की जाएगी, और ये एक संकेत स्पष्ट है कि लॉकडाउन को और सख्ती से लागू किया जाएगा। और इस बारे में जो एक ऐलान किया गया था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश सरकार की तरफ से आए हैं उसका पालन करें, तो उसको लेकर बहुत जोर है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, और लगातार एक तरह से कहें तो और सख्ती होने वाली है अब लॉकडाउन को लेकर। एक तरह से सीधे तौर पर ये बात स्पष्ट कर दी गई है। और तीसरी अहम बात कि विस्तृत दिशा निर्देश कहाँ पर छूट दी जा सकती है, किन सेवाओं में छूट दी जा सकती है। हम जानते हैं कि बहुत जगह जहाँ पर कोरोना के मामले नहीं है वहाँ पर किस तरह से छूट दी जा सकती है, जिससे जो दैनिक जनजीवन है वो कम से कम प्रभावित हो चुकी। इसका बहुत खास तौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि जो डेली वेज अर्नर है यानी जो रोज कमाने वाले लोग हैं उनके जीवन पर कम से कम असर पड़े, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है ये देखना होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर एक भी केस नया आता है तो जो छूट है वो तुरंत खत्म कर दी जाएगी, यानी पूरी सतर्कता बरती जाएगी। और जो विस्तृत दिशा निर्देश आएंगे उसमें देखना होगा कि क्या कुछ एक तरह से ऐलान सरकार करती है, चूँकि हम जानते हैं कि पहले ही कृषि को लेकर छूट दी गई है। हम जानते हैं कि जो माल ढुलाई है, सभी तरह के जो ट्रक हैं जिसमें माल ढोले जाते हैं, जो ढुलाई किए जाते हैं, चाहे एसेंशियल कमोडिटी हो या फिर ट्रक की आवाजाही जो है वो एक राज्यों के बीच उसको छूट दे दी गई है। इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कृषि से जुड़े जो कार्य हैं उनको छूट दी गई है। साथ ही साथ सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि जब अनाज बेचने की जो एक तरह से कोई चुनौती ना आए, कोई दिक्कत ना आए किसानों के सामने, तो इस तरह की तमाम छूट दी गई है। हम जानते हैं कि जब विस्तृत दिशा निर्देश आएगा तो उसमें देखना होगा कि क्या MSME सेक्टर के लिए या फिर ऐसे उद्योगों के लिए जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्या कुछ काम काज हो सकता है, कुछ औद्योगिक गतिविधियाँ हो सकती है, क्या उस ओर सरकार देख रही है। तो निश्चित तौर पर इस विस्तृत दिशा निर्देश जब इस जारी होगा तो उसमें तमाम इन अहम बातों का जिक्र होगा। तो 3 बहुत अहम बात, अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि यही वजह है कि आज भारत बेहतर स्थिति में है। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया और अगले 1 हफ्ते खास तौर पर सख्ती और बढ़ने वाली है लॉकडाउन को लेकर। और विस्तृत दिशा निर्देश खासतौर पर जिन इलाकों में कह सकते हैं कि अभी एक भी केस कोरोना का नहीं आया है, ऐसे इलाके जो तुलनात्मक तौर पर देखें तो अभी एक तरह से सुरक्षित है खास तौर पर, लेकिन वहाँ पर भी पूरी सतर्कता बरतते हुए क्या कुछ छूट दी जाएगी उसको लेकर एक विस्तृत दिशा निर्देश की ओर एक तरह से इंतजार करना होगा। तो बहुत अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। जी तो बिल्कुल उम्मीद देखते हैं कि कल क्या कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती हैं और विस्तृत क्या जानकारी निकल कर आती है, जो तमाम बातें जिन पर प्रधानमंत्री ने बात कही। शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। शुभमय भट्टाचार्य जी, जिस तरह से लगातार बात शुरू में ये सवाल उठे थे कि शायद बहुत जल्दी कर रहा है भारत लॉकडाउन लगाने के लिए, लेकिन वो सही फैसला साबित हुआ और WHO ने भी इसकी तारीफ की। लेकिन भारत ने समय रहते उठाया कड़ा फैसला, लेकिन अब आगे लगातार हमने देखा कि रणनीति में बदलाव भी किया। शुरू में स्क्रीनिंग
स्क्रीनिंग हुई, फिर बाकी जगह तक वो स्क्रीनिंग और बढ़ा दी गई, फिर रणनीति में जिस तरह से बदलाव हुआ कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, अब हॉटस्पॉट्स में भी और ज़्यादा कड़ी निगरानी की बात की जा रही है। किस तरह से देख रहे हैं कि आज भारत और ज़्यादा प्रिपेयर्ड नज़र आ रहा है, तैयार नज़र आ रहा है इस महामारी के खिलाफ? तैयार बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितने तरह के जो स्टेप बाय स्टेप कदम लेने चाहिए थे वो सब लिए गए हैं। जैसे हॉस्पिटल बेड्स, टेस्टिंग किट्स, इनकी ज़रूर शुरुआत में कमी थी, और इसके ये जो बढ़ाए गए हैं, इसके इंपोर्ट्स बढ़ाए गए हैं। अभी कल तक के डेटा हैं कि हमने 2,02,000 टेस्ट्स किए हैं। तो शुरुआत के जो हर रोज़ के 2,000 टाइप का टेस्ट कर रहे थे, अभी वो टोटल बढ़ के करीब डेली 15,000 के औसत से वो चल रहा है टेस्टिंग। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इसी से बहुत सारा केसेस जो बहुत सारी जगहों पे हम पहले देख नहीं पा रहे थे वो सामने आ रहे हैं। इसी वजह से कि टेस्ट्स की वजह से भी आपको दिख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि वो बढ़ने की जो तादाद है, हॉटस्पॉट जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, वो दिख रहे हैं कि किस जगह पे है। आप देखेंगे कि करीब 24 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिसके जहाँ पे कोई नए केसेस नहीं आए हैं, और वो इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक, जैसे अपने रणनीति कहा, वो बिल्कुल सही कहा कि ये रणनीति में कंटिन्यूस बदलाव की वजह से इससे हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। अभी भी काफ़ी लंबा है, और जो खासकर बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन की जो लॉकडाउन के हिसाब से जो लोग जो समझ रहे थे उसमें और ज़्यादा कड़ी निगरानी लाई जाएगी, और ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेज़ रहेगा। क्योंकि इस वक्त सरकार जो कह रहे हैं कि हर जगहों पे हम पूरी तरह से सख्ती बरतेंगे, वो एक लोगों के लिए एक, वही मैंने कहा था कि अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी है कि स्प्रेड किसी जगह से जहाँ पे और हमें लग रहा है कि हम विजय हो चुके हैं, उस जगह पे फिर से कोरोना का वार फिर से ना हो जाए। ये सब चीज़ें एक स्टेट को ये कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये वायरस का जो डेवलपमेंट है, म्यूटेशन है, ये हमें पता नहीं है, दुनिया में किसी को पता नहीं है, और अभी भी इस बारे में बहुत सारी जगहों पे अंधेरा है। तो इस पे जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच जो सरकार दिखा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। और Right, you're talking of how the situation will evolve in the coming say 7 to 10 days. So, Doctor, so from here, when we talk of the situation further evolving, do we see? We of course expect, and we do see. We'll see the better times ahead. This is what you mean? No, I mean, let's not even start thinking on those lines. You know, that's why he didn't say, and I think that's a very important point. That he's not saying that, you know, we are out of the woods as yet. There's still a lot going ahead. As of now, the point is that the country has done well, and that's something to feel comfortable about. As Shekhar was also saying, that there's been lots for us to feel nice about. But let's just hang in there. There's still a lot that we don't know how it will pan out, and it could be despite the best efforts by the government. Remember, that two things need to be made very clear, that despite what the government is doing, we do not know whether how this thing is panning out, and this is no discredit to the government. It is because of the nature of the disease that it is throwing up new challenges. So we have to be aware about it. The very fact that lockdown can be relaxed in some places, as he said, after 20th, and yet it might have to be retraced very quickly. These are necessary steps. So, you know, there is a lot that is going to happen. What we are confident about is the fact that yes, the authorities Till now we know have fared well. We have prepared well, Yes. and that the government has been doing whatever is necessary. In fact, it's really been, you know, showing an extreme flexibility, which government of India has not really been known for, but been wonderfully receptive, reactive to the situation. But let's not start deluding ourselves by thinking that, you know, we are already out, and by after 3rd May things will all be normal. All right, we'll take this thought forward also in the discussion, but at present we'll tell you that Prime Minister also said that citizens are fulfilling their duties as a disciplined soldier for the sake of the nation. Now, this was our strength, which is reflected in the Constitution of India as we the people of India. This display of collective strength and resolve by the people is the true tribute to Dr. Baba Saheb Ambedkar on his birth anniversary. हमारे संविधान में
जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। शेखर जी, हमने जिस तरह से देखा लगातार शुभमोई विद आरती की जो हमारी रणनीति रही वो काफ़ी अलग रही। अगर इसमें हम ट्रिपल टी की बात करें कि किस तरह से ट्रेसिंग, देन टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट, ये 3 ट्रिपल टीज रहे जिन्होंने अभी हाल में जो केसेस को आइडेंटिफाई करने में एक बड़ी सफलता हासिल की। लेकिन किस तरह से इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे हॉटस्पॉट यानी कि वो तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं वो भी बंद हैं। ऐसे में और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हम देख सकते हैं मेजर्स, क्योंकि कई ऐसी जगहें सामने इस वक्त आई हैं जो इस वक्त चिंता का सबब बन चुकी हैं। जैसे मुंबई में धारावी की बात करें या कई और भी इस जगह ऐसे कई तमाम ऐसे हॉटस्पॉट सामने आए हैं जिनको लेकर इस वक्त सरकार की ओर से बहुत सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स की ज़रूरत है। शेखर जी, अगर हम इसमें बात करें आगे तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री लगातार बात करें कि हमें एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, अनुशासन को फॉलो करना होगा, और वो तमाम चीज़ें जो लगातार जिनकी बात की जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन अब इससे बात नहीं होगी, इसे और भी ज़्यादा कड़ाई से इसका पालन होगा। और वही हमने देखा कि कई ऐसे हॉटस्पॉट्स निकल कर आए हैं इस वक्त जो इस वक्त जहाँ पर और भी ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया या मध्य प्रदेश में कई ऐसे हॉटस्पॉट्स निकल कर आए। कैसा लगता है कि और ज़्यादा जो राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स यहाँ पे लेने होंगे? बिल्कुल, और ये लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आने हैं जो एक ऐसे जगह से आने हैं जो हमें हमारे जैसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी को काफ़ी मुश्किल हालत में डाल देता है, क्योंकि उन जगहों में इस तरह का कंटेनमेंट मेजर्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। और वो चैलेंजेस कहाँ तक हम ले सकते हैं, आपने जैसे धारावी का जिक्र किया, वहाँ मुंबई में और भी कई सारे इलाके हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैसे ही बहुत कम है, और उन इलाकों में लोगों के जो नॉर्मल ज़िंदगी में ही जो चुनौतियाँ रहते हैं उन सब को देखते हुए उनके ऊपर और रेस्ट्रिक्शंस लगाना एक बहुत बड़ा एक ह्यूमन चैलेंज भी है कि हम किस तरह से कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये सारे सतर्कता उनको हर रोज़ हर घंटे मान के चलना होगा। और ये चलने के लिए और इसके लिए सरकार को काफ़ी जैसे कहते हैं एक उसी की वजह से ही, इनफैक्ट वही वजह है जो मैं पहले कह रहा था कि इसी वजह से सरकार प्रधानमंत्री का आज का जो संदेश था वो था कि खासकर इन तबके के लोगों को उनके जितना काम वो लोग किए हैं, जितना कोऑपरेशन दिए हैं, उसको एक तरफ जैसे कहते हैं बूस्टिंग द सेंटिमेंट करना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही हम देख रहे हैं कि साथ ही प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया कि वो तमाम गरीब लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिन पर असर हुआ है इस लॉकडाउन का, उनके लिए लगातार सरकार की ओर से जो राहत पैकेज है वो भी दिया जा रहा है। करीब 32 करोड़ से अधिक गरीबों को सरकार की ओर से पैकेज दिया है। 1.70 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज उन तक पहुँच रहा है। सीधे हम देख रहे हैं कि DBT हो रहा है, सीधे उनके खातों में पैसे पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी भी और ज़्यादा उनके लिए करने की ज़रूरत है। तमाम वो माइग्रेंट लेबर जो कहीं ना कहीं अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ और ज़्यादा मेजर्स किए जा सकते हैं जिसका प्रधानमंत्री ने अभी जिक्र किया? वो ये खासकर बहुत ही लंबा एक झमेला होगा, क्योंकि माइग्रेंट लेबर्स आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग जो शहरों से निकल पड़े थे उनको बहुत सारे कैंप्स में टिकाए गए हैं। अब उन कैंप्स में जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, उन कैंप्स में निश्चित ही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, दोनों पक्ष के लिए, जो रह रहे हैं और जो वहाँ पे सुविधा प्रदान कर रहे हैं, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि 10 दिन के लिए देना, 15 दिन के लिए देना, यहाँ पे जैसे 40 दिन के लिए देने का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक एक इस तरह का चैलेंज
शायद ही मतलब मैं बिल्कुल ही कह सकता हूं कि दुनिया में किसी देश के लिए इस तरह का चैलेंज सामने उठकर नहीं आया है। और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसके बारे में हम काफ़ी सालों तक इसका जिक्र करते रहेंगे कि इस चैलेंज को किस तरह से सामना किया गया था, कितना इसमें भारत सक्षम हुए थे, कितना कहाँ पे वीकनेसेस आए थे। लेकिन ये एक अपने आप में एक यूनिक चैलेंज है। और साथ में आप नोटिस करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कुछ जगहों में जहाँ पे कोरोना का वार कम हुआ है या होगा 20 तारीख के बाद, अगर डेटा अगर सही दिखाता है तो उन जगहों से लोगों को वापस काम में जुटने के लिए उनको स्पेस दिया जाएगा। तो और वो ज़रूरी है क्योंकि अभी रबी का फसल का हार्वेस्टिंग का टाइम है। साथ में बहुत सारे जगहों में बहुत सारे कंपनियां गवर्नमेंट के साथ आलोचना में इस चीज़ को सामने लाए हैं कि उनको काम चलाने के लिए वर्कर्स चाहिए, और वो वर्कर्स का होना एक बहुत बड़ा ज़रूरी स्टेप है। यानी कि बहुत सारे उन कैंप से बहुत सारे लोगों को फिर से वापस लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक नया कदम उठाने पड़ेंगे कि किस तरह से उन लोगों को एक सेफ्टी कंटेनमेंट जोन से निकाल के फिर से शहरों में लाके कहीं पे जहाँ भी फैक्ट्रीज वगैरह होंगे वहाँ पे काम शुरू करवाना पड़ेगा। उनके लिए भी ये अपने आप में फिर से नया चैलेंज हमारे सामने आएगा। और ये इसके ऊपर मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में वित्त मंत्री और बाकी सारे मंत्रियों के इस पर स्टेप्स एंड प्रोग्राम्स क्या ले रहे हैं उस पर हमें सुनने को मिलेंगे। All right, Mr. Shekhar, would you take that thought forward? Because this was the concern, this was the case of the migrant laborers. But when we talk of other important essential services, which will begin after evaluating these hotspots till 20th of April, what are the essential services which could be resumed, which the Prime Minister hinted? Well, you see, the Prime Minister today talked about the bottlenecks in the supply chain which are being removed. I think that will take priority, and that requires a lot of manual labor, because the highways are cleared, both essential and non-essential goods are moving, but they have to reach the destinated places. So for that you need the labor, and that labor in many cities comes from the migrant sections. Now, as Sukumar was explaining, some of these migrant sections are already housed in some shelters, or are, since some of them sought to leave some places, they have been kept in some shelters. Food is being provided. Now, as soon as the lockout begins to get lifted, there will be desire among these migrant section, a desire to go back to the villages and see their near and dear. They would like to just check up how they have been, and so there is a possibility that this migrant would rather love to go back to the village and then come back. So there could be a shortage of manual hands to overcome this bottleneck. So this is a challenge which the government is considering, and also in those spots which are being called the green spots or absence of there are no hot spots, where they want to allow some activity, including some production, some manufacturing of very essential goods. That place also would require the availability of labor. So that is another important challenge. So therefore, at the moment what we are seeing is continuation of the lockdown, but then, as the Prime Minister said, tomorrow's guidelines that will come out will reflect on what are the areas that need immediate attention, and how we are going to go about meeting those requirements, because the whole thing, as they say, the devil is in the details. So the details one will give us some kind of way forward. Of course, everybody knows in this situation things cannot come immediately back to the normal, because lockdown stays on till May 3rd. There will be areas where some activity will be allowed with lot of scrutiny, with lot of vigilance, but at the same time keeping all these guidelines, social distancing, health care, you put your mask, and you take all the health guidelines that are required. Yes. Along with that, to restart the economic activity, both the things. So I think that is going to be a challenge at the individual level, at the community level, at the government level.
बिल्कुल शुभम, जिस तरह से लगातार बात हो रही है कि इस बात की संकेत दिए जा रहे थे कि कहीं पे राहत मिल सकती है कई सेक्टर्स को, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने भी कहा है कि सड़क निर्माण का जो काम है उसे शुरू किया जाए, कम मजदूर बुलाए जाए और उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाए। हमने देखा कि सरकार में भी मंत्रियों ने काम संभाल लिया, अपना मोर्चा संभाल लिया है। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है और जिनको इस वक्त ज़रूरत भी है? और इस बारे में अभी कल ही मेरे सीनियर कलीग शेखर बड़ेचर्य ने एक बहुत अहम बात उन्होंने जिक्र किया था उनके कलम में। वो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई, आप रणनीति की बात कर रहे थे तो उस रणनीति का ही चीज़ को हम आगे चलते हुए कह सकते हैं कि ये एक महाभारत में जैसे चक्रव्यूह था जिसमें एंट्री मुश्किल था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उस चक्रव्यूह से निकलना जी। और हमें ये लॉकडाउन से निकलने में आपने जिन पहलुओं पे आपने का संकेत किया है कि इन चीज़ों पे हमें देखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को समझना और देखना बहुत मुश्किल ही रहेगा। और इसीलिए अभी नेक्स्ट स्टेज अभी सरकार के काम में शुरू होगा। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से आवेदन आया है कि ये रास्ता बनाने का काम अभी उसमें अलाउ किया जाए, लेकिन जैसे मजदूर लाएंगे तो कौन से किस वर्कर्स को लाए जाएंगे, उस पर साथ में किस किस सेक्टर्स में आप ट्रेन का चलना परमिट करेंगे और कौन से ट्रेन चलेंगे, कितने फ्रीक्वेंसी पे चलेंगे कि वो वर्कर्स वापस आ सके। अभी तो सिर्फ मालगाड़ियाँ चल रही है रास्ते पर, लेकिन वो मालगाड़ियाँ ट्रेन के साथ जब पैसेंजर ट्रेन शुरू होंगे किस तरीके से रोका जाएगा या किस तरीके से अलाउ किया जाएगा कि उन्हीं लोग के लिए जो लोग काम के लिए आ रहे हैं या स्पेशल चीज़ों के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखना बहुत ही अपने आप में एक चैलेंज है। और इन चैलेंजेस को, क्योंकि एक तो हमने शुरुआत में क्या किया था कि पूरा जो अर्थव्यवस्था का जो गति था वो करीब बंद कर दिया था जी। और अब हम उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं। तो वो खोलने का जो प्रक्रिया है, अगर सही तरीके से ना किया जाए तो एक चोकिंग कंडीशन शुरू हो सकता है, वो जो अपने आप में ही अर्थव्यवस्था में जब इतना बड़ा एक प्रेशर आ चुका है, वो एक नया प्रेशर क्रिएट कर सकता है और बहुत जगहों पे डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखना, और साथ में जब आपको पता है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट ख़त्म कहाँ का है, वो अपने आप में एक स्टैंडिंग चैलेंज है। उस चैलेंज को भी सामने रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी सामने रखते हुए, उन सब चीज़ों को फिर से वापस लाना एक अपने आप में एक वही चक्रव्यूह का एग्जाम्पल या उदाहरण बिल्कुल सही है कि उसमें से निकले कैसे। बिल्कुल, तो अनुशासन में रहते हुए, तमाम सावधानियों का पालन करते हुए किस तरह से अर्थव्यवस्था को वापस हम पटरी पर लाते हैं, देखने वाली बात होगी। और प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर भारत में लॉकडाउन नहीं हुआ होता सही समय पर तो ये मुश्किल हो जाता और इसीलिए कोरोना को रोक पाना मुश्किल हो जाता और इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लिया गया। आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे, उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश पूरी मजबूती के साथ कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है और जिस तरह से देशवासियों ने त्याग और तपस्या का परिचय दिया, वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम है। पीएम मोदी के हॉटस्पॉट पर पूरी तरह से सतर्कता बरतने की बात भी कही प्रधानमंत्री ने।
स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्यु होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें हॉटस्पॉट्स को इंगित करके पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी ही होगी। जिन स्थानों के हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी, कठोर कदम उठाने होंगे। नए हॉटस्पॉट्स का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनौती देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आम लोगों का साथ जरूरी है। उन्होंने इसके लिए 7 बातों का पालन करना जरूरी बताया। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है। उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। All right, so those were the important takeaways of the Prime Minister's address to the nation today, and this is a special discussion program you're watching on DD News. We're joined in by 2 guests in the studio. We're joined in by Mr. Shekhar Iyer, he's senior journalist, and also we have with us Mr. Shubhamoy Bhattacharjee, he is economic journalist. Mr. Shekhar, we were talking of how important is it now to address the concerns of weaker and downtrodden sections of the society. This is what the Prime Minister also highlighted, and he talked of how economic, or for that matter essential activities can resume in certain areas which will not be earmarked as hotspots after 20th of April. One point.
Secondly, it will somewhat help the economy. It will bring in, the much needed boost at this point in time to the economy. But at the same time, the times ahead for the government would be even more challenging, because till now, whatever we have achieved, that has been through innumerable reminders to the people to follow social distancing, to adhere to the lockdown norms, and to keep themselves self-isolated. Added to this, the government, the centre, left no stone unturned to keep the people aware and informed on every possible social media platform. So put all this together, again, when people step out of their homes, again, when the economy tries to come back on its feet, would you say that it would be like moving 2 steps forward and a step back? Because again, it would mean, the transmission, the chances of transmission, the possibility of transmission would again be back to square one. So a very cautious, a very walking on the tightrope approach has to be adopted from here on in the times ahead also for the government. Indeed, you have used a very correct term. It is a tightrope walk, because you cannot stay at home forever. Yes. And well, some of us may afford to, but then there are others who will have to go out every day to earn their daily bread, literally. So that means a situation where, see, as the Prime Minister was saying, we are reaching the 10,000 mark cases in terms of number of cases. Now, what the Prime Minister wants is, look, you cannot allow the gains that we have achieved, the new behavioral norms that have come about, the social distancing that has been largely enforced by people themselves. Now, these are the things that cannot be allowed to go or allowed to be lost. So therefore, keeping that completely in force and keeping that behavioral norms in force, we will have to see that how we can start our economic activity. And when we say economic activity, we have to start with those very essential things, particularly the case of the daily wage earners who need some job on hand to earn the daily wage. Of course, in many places they are being supplied food, they are being supplied food grains, and money has gone into their accounts. All that is happening. But much more needs to be done, because there are a lot more who may not be covered under the system. Yes. So the effort is to, that is why even the government is thinking, as we have seen in newspaper reports today, how to ensure the ration supplies to people who do not even have any ration card or anything. Because ideally, that everybody must be able to have the means for the daily food and to sustain themselves. Yes. Now, that is only possible finally they get to work. So they have to get to work. Now, how will they get to work? Which areas can the work be allowed? How much of work can be allowed? How much of activity can be allowed? How much of that economic activity comes under essential? Because today the meaning of essential economic activity has been broadened, because Yes. government is also wants the drug manufacturers to go about their business. Also those who are making other very essential goods. So therefore, I think it calls for a very carefully crafted strategy that will ensure we do not go back and lose some of the gains that we have Yes. made, some of the disciplines that we have brought into our way we are doing things. But at the same time, we will have to move forward without fear. And also, I think the third thing which is we do not know is, we do not know this disease. That's a fact that is coming across. Yes. Though our scientists are engaged in it, our doctors, our medical researchers are working on this. For one which is clear, there is no vaccine available. So the Prime Minister today gave out a call that let our young people, let our young scientists and researchers, join this world search for the vaccine, which is another big call in the Prime Minister's speech today. The second element is, how even though all this is happening, we will also have to understand, because there is a lot of talk about this particular disease showing tendency for a second surge or possibly even third surge. So since we do not know the behavior of this virus, all the cautions have to be exercised even more vigorously. See, that's the challenge before us. We do not know this opponent of ours, because if you knew how it behaves, or if a pattern has been established, you can go about fighting it more effectively. Therefore, you can see whether it is ICMR, whether it is our researchers or our even private doctors, everybody wants to follow, wait and watch, at the same time act
where action must be done immediately. Yes. बिल्कुल, तो चुनौतियां बहुत हैं और इसका बहुत ही तोड़ जवाब भी दे रहे हैं भारत। शुभमोई, एक बहुत ही खास बात है प्रधानमंत्री की, जो तमाम चुनौतियां होती हैं या जो बुरा समय होता है उसमें भी प्रधानमंत्री एक अवसर तलाशने की बात कहते हैं कि इस वक्त ये अच्छा अवसर है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। जिस तरह से हमने देखा कि मास्क की कमी हुई, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप घरों में मास्क बनाएं। हम देख रहे हैं कि DRDO जो है वो N99 जो मास्क है उसकी उत्पादन शुरू कर दिया है। PPE की जो 39 घरेलू इकाई हैं जो इस वक्त PPE का निर्माण कर रही है। मतलब किसी भी चीज़ की कमी की अगर बात हो रही है तो बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय भारत में खुद इस बात को प्रधानमंत्री लगातार दे रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं कि हम इसे खुद अपने घरों में बनाएं। और यहाँ पर भी हमारी एकजुटता यहाँ पे सामने आ रही है, जब जिस तरह से पूरे देश में इस वक्त तमाम लोग इस वक्त कार्यरत हैं कि मास्क बना रहे हैं या PPE इकाई बन रही हैं और तमाम तरह की पहल सामने आ रही हैं इस वक्त भी। बिल्कुल। और एक चीज़ जो मैं फिर से वही रणनीति वाली चीज़ों में पहुंच जाता और जा रहा हूँ बार बार, वो ये है कि किसी भी लड़ाई में वो देश या वो कौम सक्सेसफुल होता है जो अपना हौसला नहीं तो टूटने देता है। और दूसरी बात है कि आप देखेंगे कि कभी भी बहुत बड़ा, और ये एक ऐसा लड़ाई है जो दुनिया में शायद हम जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जिक्र करते हैं वो एक दूसरे से लड़ाई था, लेकिन ये भी किसी हद से कोई कम लड़ाई नहीं है और विश्व भर में तो है ही। और इस लड़ाई में वही सक्सेसफुल होता है जो अपना इन्वेंटिव स्पिरिट, नया चीज़ें लाकर अपने लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, कंटिन्यूसली लोगों को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, वही सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि रिसर्च की वैक्सीन का, और अभी ICMR का डेटा है कि करीब 40 के करीब ऐसे प्रक्रियाएं उनके पास आए हैं जिस पर काम चल रहे हैं, डेवलपमेंट स्टेज में है वैक्सीन के तौर से। कमर्शियल में तो ऑब्वियसली आने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन काम चल रहा है। ये अपने आप में काफ़ी बहुत बड़ा एक स्टेप है। साथ में आपने मास्क की बात कही, बहुत सारे कंपनीज अपने प्रोडक्शन लाइंस को बदल कर PPE बनाने के काम में जुट गए हैं। बहुत सारे कंपनियां वेंटिलेटर या दूसरे तरह की चीज़ों बना रहे हैं। आपने देखा है इंडियन रेलवेज ने तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर बहुत ही तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं और काम हो रहा है। और लगातार जो बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें और मास्क पहन के बाहर निकले। और हमने देखा कि अभी हाल ही में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री ने की थी तो अपने चेहरे पर गमछा बांधा था। और एक बार फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि when he opened the address, we saw him with a mask there. और ये तमाम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री ने जो अपनी तस्वीर है वो अब बदल दी है। और ये नई तस्वीर प्रधानमंत्री के इस वक्त जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर आपको नजर आएंगी। A leading by example is what the Prime Minister is showing through his social media accounts here. A leading by example, let's take this thought forward, Mr. Bhattacharjee. The way India has coped with this challenge so far. In the sense that we saw how the world was grappling with the crisis and how India adopted the measures at the early stage and we achieved the containment at the right time. Added to this, India has also sent medicines to the countries, needy countries who asked for help. So indeed, in these times of distress as well, in these times of crisis as well, can we say, yes, we are leading? We certainly are taking a very, very substantial role in this fight. Yes, and globally, this is on a global stage. Absolutely. Yes. And that, see, now there's no point on, in fact, no Indians need to harbor the illusion that, another feeling that, we really don't count. That period is long gone and done with. So let's not get into even a thought on those lines. The point is that this is a fight against humanity, and in that the countries which really stand up and push, and India is obviously pushing in that lines, have a strong chance to lead on, because it helps everyone, and these are substantial things. One of the very major thing that's happening here is the reform of our public distribution system. We had not thought it possible that actually the India government and the state governments would be able to really reach out to the poor the way it's done. We know that the PDS system of India is leaky. There have been several reports over years which have talked about, there are anecdotal reports about where grains don't reach, the ration supplies are often weak, people have problems. Aadhaar was a very major step to overcome that.
but still there are substantial weaknesses. This time, the way the district administrations, then the state and then the center has actually moved to make food available is, I think, leading to a fundamental rechange of our food supply system across India. And you know, this is very important in a country where we have always talked of malnutrition, the global hunger index and so on. This is something that we are really building on, and something which should be understood very properly in the context in the way it is being carried on. Similarly, the containment measures, the way the health infrastructure is expanding, especially to the weakest areas, is something that we need to be very impressed with. It is not something that we have been very comfortable with. It's not something that we've been able to do. There have been several times when this has been found wanting, but here it's almost like given that the moment there is a coronavirus case, you know that within a few hours the administration will be up and will immediately sealed off this area. बिल्कुल जो त्वरित कार्रवाई इस वक्त हमें नजर आई तमाम मोर्चों पर, सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इस पूरी महामारी के खिलाफ जो हमारी जंग है वो एकदम सही दिशा में जा रही है, और हम और भी ज़्यादा आक्रामक रणनीति के साथ आज से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा। और लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री का अनुसरण हम करते हैं। घर से बाहर नहीं निकलना है तो आपको मुंह ढक के निकलना है, और ये बात एक बार फिर प्रधानमंत्री ने साफ कर दी है। आज उन्होंने संबोधन की शुरुआत की अपने चेहरे पर गमछा बांधकर, और इस वक्त उनके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। तो आपको ये बात साफ हो गई है कि किसी हाई फाई और बहुत महंगे मास्क की आपको ज़रूरत नहीं है। आप घर में बने मास्क या आपने किसी कपड़े से, गमछे से आपको अपना चेहरा ढक के निकलना है। साथ ही बिल्कुल और तमाम जैसी बातें थी, जैसे कि अपने बुजुर्ग का आपको ख्याल रखना है, इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, और तमाम कोरोना वॉरियर्स को आपको सम्मान करना है। Yes, the Prime Minister time again has repeatedly said that precaution is the only way to keep yourself and your family safe from this pandemic. You're watching this special edition on the Prime Minister's address to the nation. Again, we repeat, please keep yourself isolated, maintain social distance, maintain personal hygiene, and that is the only way wherein you can keep yourself safe and your family members and near and dear और ones 3 मई तक safe. इस लॉकडाउन Yes. का हमें पालन करना है। हमने एक बार फिर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करनी है कि कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी जंग तैयार, Yes. हमारी जारी रहेगी। तो संयम बरतें, सतर्क रहें, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ आने का और इस खास चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। All right, so that was it in this special edition, Prime Minister's address to the nation. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।